Hi everyone. Hi everyone. Welcome to this video. This is the part 5 of this video. We are going through the orders of the Honorable Supreme Court in case title R.G. Kar Medical College. This is the rape case which has been happened in West Bengal. So we are going through what is the perspective of both the parties and what did the Honorable Supreme Court is saying on different dates. तो ये ऑर्डर है ऑफ दी 30th आई बिलीव या दीज आर दी अपीयरेंस ऑफ दी लर्न एडवोकेट्स. दिस इज 2024 का ऑर्डर है, ये 30 सितंबर का. कोर्ट ने क्या कहा है, दूसरी पार्टीज का कह रही हैं, हम वन बाय वन सारे पेजेस पे सारे पैरास पे कोशिश करेंगे कि नज़र डालें. So the parents of the deceased have been disconcerted by the repeated clips in the social media containing her photograph name beside these clips. Video have been this सोशल मीडिया. सो पार्ट 1 वही है. द डिसीज पेरेंट जो हैं वो डिस्ट्रेस्ड हुए हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत परेशान हैं. उनकी जो बेटी है उनकी सोशल मीडिया पर क्लिप्स वायरल हैं, उनके नाम के नाम पे अकाउंट बन गए हैं. कोर्ट ने इसको एक्नॉलेज किया है. The earlier order of this court shall it is clarify that not is confined only to the Wikipedia, but shall all intermediaries to retrieve. No intermediary shall allow or carry publication of the name, disease, her identity, photograph, video, either इंस्टीट्यूट ऑफ द आर्जिकल मेडिकल कॉलेज और कॉलेज से रिलेटेड रिट्रीटेड नो ना नाम फोटो किसी भी तरह का प्लेटफॉर्म कोई भी ये यूज़ नहीं करेगा. कोर्ट ने साफ बता दिया है, बैन करना है ऑन डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी. Court clarified that its earlier order is not limited to only Wikipedia but applies to all intermediaries, not intermediary. No intermediary is allowed to publish name, identity, photograph, video related to her of her to the deceased. Part 3 में on request of the Solicitor General has stated that the Ministry of the Electronics and Informative Technology (MITI) shall nominate a nodal officer to whom communication to relation to unauthorized uploading content on the pertaining to disease can be intimated so that necessary action can be taken. तो सीधा सीधा एक मिनिस्टर जो सॉलिसिटर जनरल है उन्होंने उनकी रिक्वेस्ट पर जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उनको कहा गया है कि वो नॉमिनेट करें एक नोडल ऑफिसर जिसको सीधा कम्युनिकेट किया जाएगा जो भी अनऑथराइज अपलोडिंग कंटेंट कर रहा है उस डिसीज को पकड़ा जाएगा इमीडिएटली. At court request, agree that Ministry Electronic and Information Technology will appoint a nodal officer to handle unauthorized upload related to disease, ensuring prompt action for removal. उसके बाद पार्ट 4 में वही फोर्थ स्टेटस रिपोर्ट क्या चल रही है. 13 सितंबर 2024 में DIG ने जो कहा था has submitted to the court. The state report indicated that several leads of investigation which are being followed. CBI has steps to have taken course of investigation. CBI ने कहा है कि हमारे पास डिटेलिंग सेवरल लीड्स हैं जो उस पर हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं. पार्ट 5 में वही बता रहे हैं, decided not to disclose the details of ongoing investigation or the leads being followed by CBI to maintain the वही इंटीग्रिटी और मेंटेन कर रहे हैं कॉन्फिडेंशियलिटी इन्वेस्टिगेशन की, इसलिए नहीं बताना चाह रहे हैं. पार्ट 5 में सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हैज टू मेन फोकस. सीबीआई का जो फोकस है वो दो मेन चीज़ों पे है. द एलिजिड रेप एंड मर्डर ऑन 9 अगस्त 2024 जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज और फाइनेंशियल में हुआ, और जो फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज हो रही थी इधर, जो कनेक्शन है बिटवीन इन्वेस्टिगेशन. द कोर्ट लेफ्ट इट टू सीबीआई टू डिटरमाइन वेदर द एलिजिड मर्डर एंड फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज वर कनेक्टेड और सेपरेट इंसिडेंट. कोर्ट ने कहा कि क्या ये जो मर्डर हुआ है ये और जो इरेगुलरिटीज हो रही है फाइनेंशियल पैसे का हेर फेर है, क्या ये दोनों सेम चीज़ें हैं. अब ये सीबीआई को पता करवाना है. एक और कंसर्न रेज है बाय द डॉक्टर्स इन पैरा 8 that the court took note of the resident doctors concerned that the individual with serious allegation against them still held position of authority in the medical college and hospital. कोर्ट ने कहा कि जिनके खिलाफ कंसर्न था उस तरह के डॉक्टर्स इंडिविजुअल विद सीरियस एलिगेशन जो हैं वो अभी भी कॉलेज में हैं, पोजीशन होल्ड किए हुए हैं. उसमें पैरा 9 में कोर्ट ने डायरेक्ट किया है, directed the government to examine whether individual position of responsibility should be suspended based on preliminary findings. सीबीआई की फाइंडिंग पे क्या उन्हें सस्पेंड करना चाहिए या नहीं. पैरा 9 देखें
तो पैरा 10 में लिखा ही है, द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल एग्री टू टेक नेसेसरी एक्शन अगेंस्ट एनी पर्सन अथॉरिटी इन्वॉल्व्ड इन थ्रेटनिंग और हरासिंग डॉक्टर्स और नर्सेज बेस्ड ऑन मटेरियल प्रोवाइडेड बाय सीबीआई। वही पैरा 9 में जो कह रहे हैं कि पोजीशन होल्ड कर रखी है, तो पैरा 10 वो कह रहे हैं कि ठीक है, राकेश द्विवेदी जो सीनियर काउंसिल अफेयरिंग अफेयर्स बंगाल के लिए सीबीआई ने जो शेयर किए हैं से गवर्नमेंट सच क्रिमिनल मटेरियल विच इन्वॉल्व इंडिकेटिंग कंपल्सिटी ऑफ एनी पर्सन, किसी भी पर्सन की जो पोजीशन होल्ड कर रहा है, अगर वो थ्रेटन कर रहा है, हरास कर रहा है जूनियर सीनियर डॉक्टर्स को, नर्सेज को, गवर्नमेंट को, तो दे विल टेक नेसेसरी एक्शन अगेंस्ट अकॉर्डिंग टू लॉ एंड कंसिडरिंग ऑफ सर्विस रूल एंड रेगुलेशन, उसके खिलाफ काम करेंगे। पैरा 11 में सीबीआई है टास्क विद द इन्वेस्टिगेशन whether the irregularities discovered at RGKR Medical College extend to other institutes within or outside the state। स्टेट के बाहर वाले कॉलेजेस, अंदर वाले कॉलेजेस से सिमिलर तो नहीं है। A new application also have been filed, IA number 213387 of 2024 was filed and shared with CBI for further investigation. Point 13, the court has informed that 2 new officers were appointed to key provisions in the RGKR Medical College following 9th August incident। इसके बाद पॉइंट 4 में 14 में स्टेटस रिपोर्ट जो है सिक्योरिटी एंड फैसिलिटी अपग्रेड जो की गई थी मेडिकल कॉलेज में पिछली डेट पे, जो इन्होंने एक सर्टिफिकेट दिया था, एफिडेविट दिया था कि हमने इतना इतना काम कर दिया है, क्या क्या बचा है क्या नहीं बचा है। तो मैंने उस वीडियो में भी बताया था कि कोर्ट विल एश्योर दैट इतना काम हुआ है कि नहीं हुआ है या सिर्फ पेपरों में हुआ है। तो वही बात हो रही है यहाँ पे, कोर्ट रिव्यूड दैट द कॉलेज दैट द स्टेटस ऑफ अपग्रेड एट 28 medical college including the installation of security equipment, duty rooms, washroom lighting and CCTV took note to the work status RGKR Medical College where the upgrade of duty room, washroom lighting, CCTV was underway। The Bengal committee by completing the remaining work by बंगाल कमेटी ने बोला है कि हम 31 अक्टूबर 2024 तक सारा काम कर देंगे and we'll try to meet an earlier deadline, 15 अक्टूबर से पहले कर देंगे। जाएगा कितना होता है, जैसे कि पैरा 16 में आप देख ही रहे हैं, तो स्टेट हैज इंडिकेटेड द रिमेनिंग वर्क विल बी कंप्लीटेड विद इन अ टाइम फ्रेम 31 2024 एंड इंश्योर दैट इट विल एंडेवर द कंप्लीट 15 अक्टूबर 2024। इसके बाद यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पैरा है ये पैरा नंबर 15। पैरा नंबर 15, पैरा नंबर 16 भी यही है, पैरा नंबर 18 है या स्टेट गवर्नमेंट पॉजिटिवली वर्क कंप्लीट 15 करोड़। फिर जय सिंह जो है appearing on behalf of the resident doctor made a solemn statement pursuant to the hearing took place in the court on occasion that all doctors have rejoined their duties। उन्होंने कहा कि सारे डॉक्टर रीजॉइन कर चुके हैं। रिस्पॉन्डिंग टू द स्टेटमेंट राकेश द्विवेदी सीनियर काउंसिल द स्टेट बैंक doctors are performing IPD OPD duties। MS Jay Singh categorically stated that all doctors performing all the essential emergency work including IPD। वही एक दूसरे की बात को काटते हुए, एक दूसरे की बात करते हुए कह रहे हैं, राकेश द्विवेदी कह रहे हैं कि परफॉर्म नहीं कर रहे हैं आईपीडी ओपीडी। MS जय सिंह जो है वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं सब कर रहे हैं, हम तो सारी काम करवा रहे हैं। उसके बाद कोर्ट ने नेक्स्ट डेट दी है 15 अक्टूबर 2024 को, 2 बजे के लिए मैटर फिक्स है। देखते हैं नेक्स्ट डेट पे क्या होता है, नेक्स्ट डेट पे पहले सारा काम हो पाता है कि नहीं, ये सब भी देखा जाएगा। इसके बाद नेशनल टास्क फोर्स सॉलिसिटर जनरल वाज इंस्ट्रक्टेड टू प्रेजेंट एन अपडेट ऑन प्रोसीडिंग बिफोर द नेशनल टास्क फोर्स एंड रिपोर्ट ऑन प्रोग्रेस मेड। प्रोग्रेस क्या हो रही है क्या नहीं हो रही है, तो देखते हैं अब कोर्ट का कहता है इस वाले मैटर में। इस डेट पे, आज की डेट पे 30/9 में सारे डॉक्टर्स काम पर आ गए हैं। डॉक्टर्स की जो इशू था वो कहीं ना कहीं सॉल्व हुआ है, सिक्योरिटी भी अपग्रेड की गई है। क्या अब सिक्योरिटी इस लेवल पे की गई है नहीं की गई है, इसको चेक करना होगा। अगली डेट पे देखते हैं NTF का क्या स्टेटस है, नेशनल टास्क फोर्स बन रही है कि नहीं बन रही है, कब तक बनेगी। 15 अक्टूबर से पहले CCTV और जो भी अपग्रेडेशन किया जा रहा है, टॉयलेट्स हो गया या जो भी बेसिक एमिनिटीज़ हैं उनको फुलफिल किया जा रहा है या नहीं, ये देखना होगा नेक्स्ट ऑर्डर से पहले हो पाता है या नहीं। अब ये केस 15 अक्टूबर के लिए लिस्ट है, so we'll see। Thank you so much for the patient listening and I'll mention all the orders in my video description link। आप उन्हें आराम से पढ़ सकते हैं। Thank you so much।